I welcome everyone for today's wonderful sixth session of our live lessons from Ramayana Value Education series. So we'll start. So I request everyone to stop your videos and keep yourself on mute. Okay, so we'll start. So we'll start with a prayer. Namo Vishnu Padaya Krishna Parishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले। देखिए, this prayer I am offering to all my spiritual teachers and their lordships to get their blessing, so that Ramayana is such a pure literature, so I can speak something about Lord Ramachandra and his associate and Ramayana, which I have heard from my spiritual teacher and which I will learn from my spiritual teachers. So just I want to share this with you, whatever I have read in Ramayana and heard from the great spiritual teachers. So it is my fortune to speak on Ramayana and the different personalities in the Ramayana. So we'll start with today's topic. So today's topic is dealing with misunderstanding. So this is very relevant topic and very important topic for all of us. We know that this Kali Yuga is age of misunderstandings, age of miscommunications. So this misunderstanding leads to many quarrels, bitter relationships, and even big wars. Such wars are caused due to this misunderstanding. So to understand how to deal with this misunderstanding, how they are caused, what is the root cause of misunderstandings, and what is the solution for misunderstanding, all those things we are going to discuss in this uh, our session, today's session. So see, in last session we have seen that Lord Ramachandra and Lakshmanji reached till Rishimuk mountain. Now Rishimuk mountain, they reach at the bottom of the Rishimuk mountain. So from there we'll begin now today's session. So in this session elaborately, whatever Wali and Sugriv, their fight happens and Lord Ramachandra kills Wali, and that whole episode we are going to see in this, and we are going to learn so many valuable lessons in today's session. So see here, am I audible clearly to everyone? Am I audible clear? Yes. Okay, okay, देखो, Yes. the prayer on the mountain. So that on the Rishimuk, see here picture of Rishimuk mountain is shown. So now it is very less, but that time it used to be very high mountain. So high on the peak of the Rishimuk hill, Sugriva had heard Rama's cries, because Lord Ramchandra was crying because Mother Sita he could not find, and he could not protect his wife Sita. She was such a noble lady. He could not protect her. She was fully dependent on him, but he could not protect her. That's why he was crying. And so it was very painful to Lord Ramachandra. So that time Sugriva heard the cries of Lord Ramachandra. ठीक है, Lord Ramachandra के cry किसने सुना? सुग्रीव ने सुना. तो सुग्रीव ने जैसे ही सुना, तो he was seeing from the top of the that ऋषिमुख हिल. सो ऋषिमुख हिल के ऊपर से जब सुग्रीव देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नीचे दो ऋषि कुमार दिख रहे उनको, बट देवर सेम्स टू बी क्षत्रिय. वो तो क्षत्रिय दिख रहे, उनके पास बो एंड एरो है, बट उन्होंने कपड़े तो ऋषि मुनियों के पहने हुए है. ठीक है ना. तो ही वाज लिटिल बिट अफ्रेड, एंड दे ही वाज सीइंग दैट दे वर लाइक looking so beautiful, so powerful, so effulgent, as if they were some demigods like that. Like that he was thinking. तो उसको लगा रहे इतने पावरफुल पर्सनालिटीज, वो भी ऋषि के या किसी मुनि के भेष में, ऐसे कैसे. तो उसको डर था कि कहीं वाली ने तो नहीं भेजा है ना. वाली हमेशा किसी ना किसी को भेजता था सुग्रीव को मारने के लिए, सुग्रीव को पर अटैक करने के लिए. ठीक है.
तो उनको लगा कि वाली की ने तो नहीं भेजा था इनको, तो उन्होंने बोला कि कुछ चेक करना चाहिए सच में क्या प्रॉब्लम, कुछ दाल में काला तो नहीं है ना, है ना, ये पूरी दाल ही काली है, वो देखना पड़ेगा बोले. सो दैट टाइम देन सुग्रीव वाज seeing around and he saw these two princes, है ना, on the edge of the lake. So he immediately he become little fearful because of Wali. Then Sugriva was wondered that whether they were two demigods or something, some celestial people. तो उन्होंने क्या किया, तुरंत हनुमान जी को बोला कि आप क्या कीजिए, जाके उनकी परीक्षा लीजिए कि वो एग्जैक्टली है कौन, आप ब्राह्मण का वेश धारण कीजिए और ब्राह्मण के वेश में जाके क्या कीजिए, उनकी परीक्षा लीजिए कि वेदर दे आर आवर एनिमीज और फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हु आर दे, बिकॉज दे लुक लाइक गॉडली पीपल, सच अ पावरफुल पर्सनालिटीज एंड सच ए एफल्जेंट पर्सनालिटीज. तो जाके आप चेक कीजिए वो दोनों है तो कौन है. तो ठीक है, फिर उस टाइम पे हनुमान जी बोले ओके. तो हनुमान जी जो है, हनुमान जी गए और उन्होंने एक ब्राह्मण का क्या किया, वेश धारण किया और उनके पास चले गए. तो हनुमान जी को हमें पता है उनको बहुत ज्यादा ही हैड लव, वेरी ही हैड सो मच लव एंड डिवोशन फॉर लॉर्ड विष्णु. ठीक है ना, दैट टाइम ही वाज नॉट नोइंग लॉर्ड रामचंद्र. सो देन एज ही लुक्ड एट लॉर्ड रामचंद्र, सो इमिडिएटली जैसे तो वो बताने लगे, बहुत मीठी मीठी बातें करने लगे लॉर्ड रामचंद्र से और लक्ष्मण जी से कि आप तो ऋषि मुनियों के कपड़े धारण किए बट आप तो क्षत्रिय लगते हो, आप कौन हो, इस पर्वत पे आए क्यों हो, किस पर्पज से आए हो, क्या रीजन है, आप क्या करना चाहते हो, ये सब चीजें उन्होंने पूछना चालू किया ये वो. तो जब जैसे ही उन्होंने लॉर्ड रामचंद्र की तरफ देखा तो तुरंत क्या हो गया, लॉर्ड रामचंद्र को देख के ही उनके उन्होंने जो, तो पहले वो पहचान नहीं पाए, लॉर्ड रामचंद्र को पहचान नहीं पाए हो. तो वो भी क्या कर रहे थे, अपनी खुद की पहचान छुपा के भगवान के सामने गए, है ना. वो हनुमान जी है, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ ब्राह्मण फॉर्म. So that time he could not identify his own Lord, Lord of his own heart. He was longing for Lord. He was waiting for Lord from so long, from his birth itself, है ना. तो वो उनके उनके जो डियर लॉर्ड है उनको पहचान नहीं सके. क्यों, क्योंकि वो खुद डिस्गाइज में आते, खुद क्या किया था उन्होंने, अपना जो आइडेंटिटी वो छुपाया था. तो जैसे लॉर्ड रामचंद्र को देखा, उनके हार्ट में so much immense love for Lord Ramachandra and love and devotion immediately awaken. एंड जो उन्होंने वो अलग भेष बदल के गए तो पूरा भेष क्या हो गया, वो चला गया, वो इमीडिएटली उनके ओरिजिनल फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ गए, तुरंत आ गए ऑटोमेटिकली, हनुमान बन गए फिर से. वो जो ब्राह्मण के वेश धारण किया था वो चला गया और वो हनुमान जी बन गए. सो देखिए व्हाट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस is, as soon as Hanuman saw Lord Ramachandra, his disguise disappeared. For one who beholds the form of the Lord, all his evil intentions vanish. ठीक है, तो जैसे ही हनुमान जी ने लॉर्ड रामचंद्र को देखा तो उनका जो उन्होंने वेश धारण किया था वो क्या हो गया, गायब हो गया, वो चला गया. तो वैसे जो लॉर्ड रामचंद्र का, जैसे हम लोग देखते हैं लॉर्ड रामचंद्र और भगवान का, विष्णु जी के कोई भी फॉर्म या भगवान श्री कृष्ण, उनको देखते ही क्या होता है, अपने जो जो पर्सन देखता है उनको, उनके दर्शन मात्र से अपने हृदय में जो बुरी सारे इंटेंशंस है, बुरे जो इच्छा है, उनका नाश हो जाता है. ठीक है, तो भगवान का दर्शन अगर हम भक्ति भाव से और प्रेम से अगर भगवान का दर्शन लेते तो ये सारी चीजों का क्या होता है, विनाश हो जाता है, अंदर जो बुरी चीजें हैं. तो ऐसे दर्शन देखो अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है. तो एक दर्शन आप, यू आर हियरिंग अबाउट लॉर्ड, हिज पास्ट टाइम एंड हिज एसोसिएट्स, दैट इज आल्सो वन ऑफ द दर्शन, है ना. दैट इज आल्सो दर्शन थ्रू ईयर, and we can see through eyes also, like that many darshan, there are many, some great souls take darshan of Lord through their service, है ना. तो ऐसा है. तो अभी देखिए लॉर्ड रामचंद्र जो है, उन्होंने देखते तो पहले लॉर्ड रामचंद्र जी ने उनको खुद को रिवील नहीं किया हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान के सामने क्या हो गए, भेष बदल के आ गए. ठीक है, तो अगर हम भी भगवान के सामने कुछ और दिखावा करने जाएंगे तो हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे. अगर हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और है तो विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लॉर्ड रामचंद्र. ठीक है, तो इसमें देखिए कि दूसरा इसके अंदर एग्जांपल क्या है, फायर फ्लाई जो है, फायर फ्लाई क्या करता है, इमिटेट द सन इन डार्कनेस. तो उसको क्या बोलते, काजवा बोलते शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो जो है जुगनू बोलते हैं, हाँ जुगनू बराबर है. जुगनू जो क्या करते हैं, देखो रात में वो पूरा इधर से उधर उड़ता रहता है और उसमें से लाइट आता है बाहर, है ना. तो उसको लगता है रोज जितना क्या करता है, अपना पूरा एनर्जी एक्सर्ट करता है,
और वो और लाइट एग्जिट करता है, पर रात में उसका चमकता हुआ सबको अट्रैक्ट कर सकता है वो अपने लाइट से, पर दिन में सन आने के बाद वो कितना भी लाइट छोड़े कुछ फर्क पड़ने वाला दिखने भी नहीं वाला वो लाइट, है ना। तो वैसे ही जैसे जैसे कि भगवान सामने आते तुरंत वो सारी क्या होती है अपने पाप में जो या बुरे जो इंटेंशन है, बुरे जो नेचर है, वो सारा वैनिश हो जाता है। जैसे कि सन के आने से जुगनू का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहता था, वो आइडेंटिफाई, उसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो जब तक हम भगवान को प्रॉपर और जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो अपना जो सच्चा आइडेंटिटी है उसके थ्रू अप्रोच नहीं करते, इट विल नॉट बी प्लीजिंग टू लॉर्ड। तो भगवान रामचंद्र को हनुमान जी भेष बदल का है, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को रिवील नहीं किया हनुमान जी को। बट जैसे ही उनको देखा, उनका जो फॉर्म बदल गया, देन हनुमान जी पहचान गए कि ये मेरे भगवान है। फिर उन्होंने जैसे ही चरण छुए भगवान रामचंद्र जी के, and when he surrendered unto Lord Ramachandra, he offered his obeisances to Lord Ramachandra. That time, then we can see that time immediately Lord Ramachandra revealed that he is non-different than his own Lord, his Lord of his heart, है ना। So that time Hanuman ji understood, oh like that। तो हमारा देखो ट्रू आइडेंटिटी क्या है, हम अभी लगाते इधर बाहर आज इधर, सपोज आई एम प्रोफेसर एंड HOD ऑफ केमिस्ट्री एंड ओ दिस एंड दैट, मैं ये इंजीनियर डॉक्टर है, वैसा वैसे हम आइडेंटिटीज लगाते रहते। But if you go with those identities in front of the Lord and you try to do show up, if we go on this bodily identity with using this or bodily identities, then we will never able to understand Lord Ramachandra, है ना। We will never able to please him, but we are originally, we are soul, spirit soul। So unless and until we approach Lord in the form of the soul, till that time we cannot understand Lord Ramachandra। तो देखिए अभी जो अवर ट्रू आइडेंटिटी इज सोल, तो सोल क्या है, देखिए सोल हम कैसे बने हुए हैं। तो जैसे आपको कोकोनट पता है, कोकोनट है ना, तो कोकोनट जो है उसके ऊपर क्या होता है, फाइबर होता है, उसके अंदर क्या होता है, शेल होता है, और शेल के अंदर एक्चुअल ओरिजिनल कोकोनट होता है। वैसे ही हमारा बॉडी है, देखो जो बाहर है वो ग्रॉस बॉडी है, अर्थ वाटर फायर एयर इथर, पंचमहाभूत का जो बना हुआ है ना, अर्थ वाटर एयर फायर, जो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस बॉडी मीन्स स्थूल शरीर, ठीक है, जो पंचमहाभूत का बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एयर एंड इथर। फिर उसके बाद जो हमारा देयर इज अ सटल बॉडी विच यू कैन नॉट सी, विच यू कैन नॉट टच, विच यू कैन नॉट फील, बट इट इज देयर, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज देयर। माइंड, अपना मन है कि नहीं। फिर इंटेलिजेंस इज देयर। सो मेनी पीपल मिसअंडरस्टैंड हार्ट टू बी माइंड, हार्ट इज नॉट माइंड, हार्ट इज डिफरेंट, माइंड इज डिफरेंट, ठीक है। हार्ट इज फिजिकली प्रेजेंट देयर बट माइंड इज डिफरेंट, मन अलग होता है। इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस बुद्धि, फॉल्स ईगो। इंटेलिजेंस किसी का निकाला जा सकता है, किसी में डाला जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, वैसा नहीं है ना। इंटेलिजेंस इज अ सटल, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड। फॉल्स ईगो मीन्स मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये प्रोफेसर हूँ, मैं ये स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो सब जो है, मैं मैन हूँ, मैं वुमेन हूँ, दैट इज फॉल्स ईगो। तो माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, अंदर उसका और सटलर कवरिंग आता है, और उसके अंदर ओरिजिनल सोल है। एंड सोल इज सच्चित आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। सत मीन्स इटर्निटी, चित मतलब नॉलेज, एंड ब्लिस, आनंद मीन्स ब्लिस, ठीक है ना। इटर्नल मीन्स सोल नेवर डाइज, है ना, सोल कभी मरता नहीं, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। नॉलेज मीन्स इट हैज फुल नॉलेज, सोल हैज फुल नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब नॉलेज है, बट वी आर covered by this subtle body and gross body, that's why we are not remembering anything। otherwise soul is full of knowledge, ठीक है ना। then bliss, तो bliss is soul nature is to be happy, soul's nature is to be always be happy, है ना, हमेशा खुश रहना है, क्या है, सोल का नेचर है, सोल हमेशा खुश रहना चाहता है। तो दैट इज द, वी कैन सी दैट इज द नेचर ऑफ सोल, टू ऑलवेज बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड। सो सोल कभी मिजरी सफरिंग एक्सेप्ट नहीं करता। सो दैट इज द नेचर ऑफ सोल। सो ये तीन हो गया। तो सोल को थोड़ा हम देखो आगे देखते हैं। तो इसके बाद सो देखिए सोल का भगवद गीता में क्या बताया हुआ है सोल के बारे में। एज embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. भगवद गीता 2nd chapter 13th verse, है ना, दूसरा अध्याय 13वें श्लोक में बताया गया है इसमें कि देखिए इसके अंदर हम लोग कैसे सोल, पहले क्या होता है, तो बॉडी से हम छोटे बच्चे से जन्म होता है, फिर उसके बाद बचपन, उसके बाद और यूथ, फिर ओल्ड एज, देन सोल सिमिलरली पास इनटू अनदर बॉडी एट डेथ।
एंड देन अगेन डेथ होने के बाद फिर से नई बॉडी लेके वापस आता है। देखो इधर मर गया है पर्सन, एंड देन यहाँ से अगेन इधर से फिर से नया बर्थ लिया अपनी माता से और फिर से नया बन गया। और ये अलग अलग ऐसा नहीं सिर्फ इंसान ही बनता है, देखो अलग अलग स्पीसीज है तो दिख रहा है ऐसे 84 लाख स्पीसीज है, 8.4 मिलियन स्पीसीज आर देयर, वैरायटीज ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो उसमें सारे स्पीसीज में वो घूमता रहता है अलग 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 योनियों में। सो दैट वी कैन सी, दैट इज टोल्ड इन भगवद गीता। देन again we can see what is told in Bhagavad Gita about soul. Dehino asmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, ठीक है। तो एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The sober person is not bewildered by such a change. तो जैसे हम अगर हमारे पुराने कपड़े अगर खराब हो गए, फट गए, तो हम उन कपड़ों को क्या करते, फेंक देते और नए कपड़े धारण कर लेते हैं ना, नए वस्त्र पहन लेते हैं, वस्त्र को त्याग करके पुराने। तो उसी तरीके से आत्मा जो है, जब ये शरीर क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, इसका फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाता, उस समय पे क्या करते हैं हम लोग, ये देखा कि ये शरीर को आत्मा त्याग देती है और नया शरीर क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। तो ये हमें इस भगवद गीता के अंदर बताया गया है, ठीक है। सो देखिए सोल के ऊपर देयर आर सो मेनी साइंटिफिक प्रूफ्स आल्सो, बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आत्मा का अस्तित्व प्रूव हो चुका है। उसके भी बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, देखते री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, ऐसे बहुत सारे इनके केसेस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। तो वो उसके ऊपर स्पेशल एक सेशन है, साइंटिफिक एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा का अस्तित्व करके, उसका मेरा रिकॉर्डिंग भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है यूट्यूब पे। इस पे जो रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग जिस पे भेजा जाएगा उस पे आप अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, या फ्यूचर में विल कंडक्ट दैट सेशन आल्सो आफ्टर दिस रामायण सीरीज। सो आई विल नॉट गो इन मच डिटेल्स ऑफ द सोल, जितना इसके लिए रिक्वायर्ड है उतना ही हम देखेंगे, ठीक है। और देखिए क्या बोला जाता है, और भगवद गीता में सोल के बारे में क्या बताया, बहुत सारी चीजें बताए, सेकंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें सोल के ऊपर ही है। बट और एक श्लोक देखते हम लोग, न जायते न म्रियते वा कदाचिन नय भूत्वा भावित वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो क्या है, फॉर द सोल देर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, he has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain, ठीक है ना। तो सोल के लिए जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं। जिस मृत्यु से हम इतना डरते हैं, जिसको जो कोई नहीं चाहता है, तो उसको कभी जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सोल को कभी बुढ़ापा नहीं आता, आत्मा को, है ना। He has not come into being, तो वो कभी उसने उसको किसी ने बनाया नहीं, या बनाया नहीं जा सकता, या उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, है ना। वो अनबॉर्न है, इटरनल है, सनातन है, वो इटरनल है, सनातन है, एवर एग्जिस्टिंग, हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व हमेशा है, भगवान के साथ ही उसका अस्तित्व है आत्मा का, ठीक है। प्रीमियल भगवान के क्या हम लोग अंश है। तो भगवान जब आए, भगवान ने अपने जो अंश है उनको बनाया, आत्मा जो है भगवान ने बनाई हुई, तो वो सनातन काल से है, ठीक है। इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन, बॉडी अगर बॉडी को किसी के मार डाला, टुकड़े टुकड़े कर दी, तो भी सोल का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, आत्मा को कभी कुछ होगा नहीं। इट इज टोल्ड इन दैट। बस इसका मतलब ये नहीं जाके हमने किसी का मर्डर करना चाहिए, इट डजंट मीन दैट, ठीक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। सो इसमें भी बताया गया, एज ए पर्सन पुट्स ऑन न्यू garments giving up old ones, the soul similarly accept new material bodies giving up the old and useless ones। भगवद गीता 2.22, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22 श्लोक में बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, पुराने वस्त्र अगर खराब हो गए तो जैसे हम उसको उनका त्याग करके नए वस्त्र जो है धारण करते हैं, उसी तरीके से आत्मा क्या करती है, मृत्यु के समय पे इस शरीर का त्याग करके क्या करती है, नए वस्त्र को धारण कर लेती है, नए शरीर को धारण कर लेती है, ऐसा। तो शरीर मर जाने से आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का नाश होता नहीं, आत्मा अजरामर है, ठीक है। ये हमने समझना बहुत जरूरी, दिस वी शुड अंडरस्टैंड इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी दोज क्वेश्चंस after the end of sessions, because
आफ्टर दिस मीटिंग एंड्स, तो अभी आप टाइप मत कीजिए चैट में, क्योंकि अभी आप टाइप करेंगे तो ये मीटिंग एंड होने के बाद फिर से हम जब ज्वाइन करेंगे तो चैट नहीं रहेगा वो. So better not to type in chat right now. Neither you should ask questions right now. You write it down, note it down, and at the end of session you can ask. I will give time for question answers. Okay. So we'll move ahead. So see now, there is some video of Midnight, reincarnation. Monday, May 1st, 2000. The screams came out of nowhere. One day, James Leininger, just 3 weeks past his second birthday, was a happy, playful toddler, the centerpiece of a loving family of 3 living on the soft coastal plain of southern Louisiana. And then suddenly, in the darkest hour of midnight, he was flopping around on his bed like a broken power line, howling at the sky as if he could crack open the heavens with his ear-shattering distress. So this is about reincarnation of the soul. These are samples of the Here recurring carefully. drawings that James did every day for a year and a half or 2 years. It was just like the nightmares. It just goes on and on. I was always looking for a logical explanation for James's nightmares and his knowledge of aviation. And many people have asked us, do we have an aviation or military background? And we don't. And that's what made James's recollections so much more uncanny, that he had the... These are the skeptical adventure of discovery that went thousands of miles, talking to hundreds of people, remembering the spirit. देखिए ये बुक है फाइटर पायलट के ऊपर, स्टोरी के ऊपर ये बुक था. तो देखिए, तो ये रीइंकारनेशन के बारे में वीडियो अब मैं बताता हूँ. उसके अंदर क्या है कि जेम्स नाम का छोटा सा बच्चा था, तो वो बचपन से क्या करता था, अलग अलग फाइटर जेट्स के कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन ड्रॉ करता था, फाइटर वार स्ट्रेटजीज ड्रॉ करता था, उसको ड्राइंग्स बनाता था, और उसको फाइटर जेट के बारे में सब कुछ पता था. उसको रिपेयर कैसे करना है, उस फाइटर जेट्स को चेक कैसे करना है, उसके बाद अटैक एनिमी के ऊपर कैसे करना है, कैसे खुद को बचाना है, दैट एवरीबडी एवरीथिंग ही नोज दैट. एंड उनके पेरेंट जो पूरे शॉक थे, तो वो गए एक्चुअली, उन्होंने ढूंढा, तो देन दे फाउंड आउट. अभी वो बहुत बड़ा स्टोरी है, बट आई विल जस्ट टेल यू द कंक्लूजन कि दे फाउंड आउट दैट ही वाज एक्चुअली द फाइटर पायलट World War II. वो उस उनका प्लेन क्या हो गया था, प्लेन को उड़ा दिया गया था बॉम्ब से. जब व्हेन ही वाज इन हिज फाइटर प्लेन, तो क्रैश हो गया और वो मारे गए थे उसमें. तो ही नोज दैट एवरीथिंग अबाउट हिज पास्ट लाइफ, पूरा सब कुछ याद था उनको, ठीक है, पिछले जन्म के बारे में. So from that we can understand that reincarnation is there, soul exists. Okay, so body change but soul is same. Soul passes from one body to another. So these details are given in that session of existence of soul. Discover yourself course is there in that 4th session. Detailed information and proofs of existence of souls are given. So I will not go in much detail into that. So see here now, dharma means that which cannot be given up, or that which is a constant companion. तो धर्म मतलब क्या है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, चाह कर भी छोड़ नहीं सकते, है ना, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, दैट इज धर्मा. तो धर्मा देखिए, वाटर एंड लिक्विडिटी. वाटर से लिक्विडिटी छीना जा सकता है क्या? कैन वी सेपरेट लिक्विडिटी फ्रॉम वाटर? नो, इट कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, है ना. सॉल्ट एंड सॉल्टीनेस कैन नॉट बी सेपरेटेड. सॉल्ट है तो सॉल्टी ही लगेगा, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है ना. तो सिमिलर पैशन, फायर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द हीट एंड लाइट. वेयर देयर विल बी फायर, देयर विल बी हीट एंड लाइट. So it cannot be separated from heat and light. So similar passion, dharma is not a passion, you know, dharma is not a passion, it cannot be changed. So dharma cannot be changed. Nowadays people think that this dharma, that dharma, and I will change this, that, but dharma is for soul. Hindu, Muslim, Christian, Sikh, these are dharmas just for body. Is somebody is born in Hindu, so he's Hindu. Somebody is born in Muslim, so he's in Muslim. It's Christian. That is not the real dharma. Real dharma is for soul. And what is that, we'll learn in further sessions. So God is eternal. God भगवान जो सनातन है, वो परमानेंट है ना. और सोल जो है वो भी सनातन है, और उनका जो रिलेशनशिप है, लविंग रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड सोल, दैट इज ऑल्सो इटर्नल. सो दीज 3 थिंग्स आर इटर्नल इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज इटर्नल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी. बाकी दुनिया में आप कोई भी चीज देखो, एवरीथिंग इज टेम्पररी, बट गॉड इज इटर्नल, सोल इज इटर्नल, एंड loving relationship between the God and soul is eternal. These 2 things are eternal in nature. So we should understand this thing that, see, soul,
सोल हम देखते हैं कि जो मुस्लिम पर्सन है, क्रिश्चियन है या हिंदू है, उनमें जो सब में जो आत्मा है दैट इज सेम, same soul is there. So God is also one. Soul is also soul is a part and parcel of God. Soul can never become God, neither soul is God. ठीक है, soul is a part and parcel of God. just जैसे समुंदर है और समुंदर का बूंद है ना, तो बूंद क्या है कि बूंद का क्वालिटी जो है समुंदर के समान ही है, समुद्र के समान ही, जैसे सब पूरे समुद्र का पानी जो सॉल्टी है तो समुद्र का एक बूंद भी सॉल्टी है, बट देयर इज डिफरेंस इन क्वांटिटी, है ना, क्वालिटी इज सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट। समुद्र कितना कहा, एक बूंद को तो हम ऐसे हाथ पे लेके घूम सकते हैं, समुद्र को लेके घूम सकते क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे गॉड के जो पावर्स है दे आर अनलिमिटेड, इज क्वालिटीज आर अनलिमिटेड, है ना, एवरीथिंग प्रेजेंट इन द गॉड इज अनलिमिटेड, इनकंसीवेबल, हम कंसीव नहीं कर सकते अपने सेंसेस से, बट सोल इज लिमिटेड। क्वालिटी इज सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट, बट सोल कैन नेवर बिकम गॉड, है ना। तो वन ड्रॉप, इफ यू टेक वन ड्रॉप ऑफ वाटर इट कैन नेवर बिकम ओशन, वन ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप, कलेक्टिवली ऑल टुगेदर, तो दैट, तो इसका मतलब, बट अगर समुद्र से एक ड्रॉप निकाला तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, कुछ कम नहीं होता उसमें। So similarly, God is fully complete, eternal, है ना, and is full of powers. He has unlimited power, inconceivable strength, inconceivable powers. All these things you can see in the God. So after 10 minutes, this meeting will end. So please rejoin again after 10 minutes. So this is the thing. See now. So when we do some service for the Lord and develop love for Him, then we truly find happiness in our life. Rest all other happiness are temporary and illusory, and the loving relationship between the two is also eternal. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि भगवान की हम सेवा करते हैं और भगवान के प्रति अगर प्रेम हम क्या करते, डेवलप करते, तो हमें सच्चा सुख मिलता है। ठीक है, बाकी सारी जो चीजें है, वो जो सुख है वो टेम्पररी है और इल्यूजरी, आज है तो कल नहीं है ना। जैसे आज आप टॉपर है, आज नीट का एग्जाम हुआ तो किसी का बहुत अच्छा गया, सपोज उसको 700 आ गए, 720 में से 720 आ गए, तो खुश रहेगा कितने, 2-3 साल, उसके बाद क्या, उसके बाद अगेन सम डिफरेंट एग्जाम्स विल कम, डिफरेंट मिजरीज विल कम एंड मेनी अदर थिंग्स विल कम। ठीक है, सो दिस इज द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट all other things are temporary. ठीक है, all other things are temporary, so we can see, but only happiness is to serve Lord and to, we can see, to develop love for Him. That is real happiness. You'll get real happiness through that, which cannot imagine also. Once you do it, then you'll imagine it. See, Tukaram Maharaj जैसे great saint है, Prabhupada जैसे, तो they left everything. इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ छोड़ के जाना है, we can serve while doing our duties also. ठीक है ना, we can do our duties. Suppose I am teacher, I can teach, and accordingly simultaneously I can take such classes, I can read myself Bhagavad Gita, Bhagavatam, I can chant holy name of the Lord, and along with that I can do my duties. So you are students, so you can study, and along with that you can do your do chant holy name of the Lord, you can read, you can attend such sessions of the value education class. So that is service for us, है ना. So gradually can develop love. That is simultaneous process. जो जैसे एक रेलवे के 2 ट्रैक है, तो एक ट्रैक क्या है कि हमारा ड्यूटीज है, और दूसरा ट्रैक क्या है, लविंग सर्विस अनटू द लॉर्ड, डिवोशनल सर्विस अनटू द लॉर्ड. तो बोथ शुड गो साइमल्टेनियसली, हैंड इन हैंड, देन विल बिकम हैप्पी. सो इससे हम देख सकते हैं कि जो साधु संत लोग हैं उनके पास क्या होता है सब, दे आर फुल्ली हैप्पी, सेटिस्फाइड. उनके पास तो कुछ होता नहीं है, बट दे आर फुल्ली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. व्हाई? Because service unto the Lord and love for, once we develop love for the Lord, that gives us real happiness in life. That we should understand. ठीक है, so that eternal love and service to God is called सनातन धर्म. तो सारे जो आत्मा है, सब सारे कोई भी धर्म का हो, even there is soul is present in the trees and even in the mosquito, all living beings there is a soul, है ना. So same soul is present over there. Their bodies is different. So sometimes we can see that South Indian wears different dress, North Indian wears different dress, Maharashtrian wears different dress, South Africa they wear different dress, Americans wear different dress. So their dresses are different, but all are human. है ना, their lifestyle is different, their culture is different, they eat different stuffs. So similar fashion, all the living beings, their bodies like tree and mosquito, flies, humans, tiger, ant, and all those, these are different dresses, but soul is same. Whatever soul is present in them, that is the same soul. We can see same soul is present over there. And soul's nature, your soul's dharma is to love and serve God.
तो सोल का धर्म क्या है, सनातन धर्म, जो सेपरेट नहीं किया जा सकता, टू लव एंड सर्व। दैट्स व्हाई एवरीवन वांट टू लव somebody and get loved by someone, है ना। सब लोग देखिए, सब लोग इसलिए जितने भी मूवीज देखते हैं आप वो पैर के ऊपर ही बने रहते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट टू लव समवन, टू गेट लव्ड बाय समवन। सब कोई किसी को प्रेम करना चाहते हैं या किसी से प्रेम करवाना चाहते, है ना, अपने को, या कोई, सब लोग किसी की सेवा करना चाहते हैं या खुद की सेवा करवाना चाहते हैं, बिकॉज स्पेशली सेवा करना चाहते हैं, इसलिए देखते हैं मातृ सेवा, पितृ सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, ये सेवा वो सेवा, है ना, सोशल सर्विस हम देखते हैं, ये सर्विस, दैट सर्विस, दिस सर्विस। सो that all these things, that because that is eternal nature of soul, that cannot be separated. Nowadays people don't serve God but they serve dog, but that service tendency is there, you can see that service nature is there. So that cannot be separated from the soul, that loving nature is there. So in foreign countries you see people love dog, serve dog, because they see that they found that all humans are selfish, they are not treating them properly, they are not loving, serving properly, that's why then they love and serve dog. But that loving and serving nature is there, but they are frustrated eventually, they are separated from their beloved dog, that dog dies after some time or something like that. But whenever we love God, actually when we love God selflessly and we serve God selflessly, that time we get actual happiness and we can be fully satisfied in our hearts. So that is Sanatan Dharma, that teaches us. Sanatan Dharma teaches us to love and serve God. Okay? So Ramayana, Mahabharata, all this teaches us Sanatan Dharma. So afterwards we'll move ahead now. This is all about, this is we can talk so much about soul and Sanatan Dharma. So many details are there, but we are very short of time. That's why I'll move ahead quickly, so we can complete other topics also in this session. So see, brothers in misery. So that time when Hanumanji sees and understands that Lord Ramachandra is none different than Lord Vishnu, you know, is the incarnation of Lord Vishnu. So he surrendered unto him and he immediately go to Sugriva and report that, and he praised the princess that they are godly, they are such a great person, they are such a noble personalities. You should surrender unto them, you should accept their friendship, you should make friendship with them, you should respect them, you should serve them. Like that Hanuman was telling so excitedly, you know, he was so excited to glorify Lord Ramachandra, beloved Lord of his heart. And also we can see he was very much happy to be with, to meet Lord Ramachandra and understand his glories and his beloved Lord Lakshman and all. So he was explained to Sugriva, and then Sugriva, when he heard that, he then immediately agreed. Because Hanuman ji was such an intelligent person and such a powerful, such a, we can see, knowledgeable person. So he understood that Hanuman's gaze can never be wrong. Hanuman can never speak lie or something wrong. So then he called them immediately and they met. देन से हनुमान ने जैसे बताया कि उन्होंने क्या किया, फ्रेंडशिप का वाव लिया रामचंद्र और सुग्रीव। तो दोनों फ्रेंड कैसे बने, देखो रामचंद्र जी बोले देखो मेरी पत्नी को किडनैप किया गया है, तो मुझे क्या है कि बोले देखिए आई एम सर्चिंग फॉर my beloved wife, my duty was to protect her but I could not protect her, so now I want to search her. And Sugriva was also in similar condition. Wali has banned him from his kingdom and took out everything from him. Even Wali was so sinful that he snatched Sugriva's wife also from him, and he was enjoying with the Sugriva's wife. So that was such a sinful act, such a deadly act. You can see such a heinous act he was doing. So हम देखते हैं कि उसमें जो सुग्रीव था, सुग्रीव को सब कुछ छीन लिया था और उसको किंगडम से निकाल दिया और उसको मारने के लिए तैयार हो गया था वाली। तो दोनों भी दुख में थे। लॉर्ड रामचंद्र, एक्चुअली लॉर्ड रामचंद्र इज नॉट इन, वी कैन से मिजरी, बट इन ह्यूमनली platform we can see that Lord was doing human lila. So that time human pastimes, in that way, in that sense we can they see that Lord was in a misery, and Sugriva was also misery. Sugriva was also present in misery. So their both common background was there, common ground was made to make friendship. तो देखिए फ्रेंडशिप बना के फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, कंडीशन सिचुएशन मैच होना चाहिए, तब हम फ्रेंडशिप बनाते हैं, है ना। सो लॉर्ड रामचंद्र क्रिएटेड कॉमन ग्राउंड फॉर फ्रेंडशिप एंड दे मेड फ्रेंडशिप विद ईच अदर, ठीक है। तो फिर उन्होंने तो बोले फ्रेंडशिप क्या, सिर्फ फ्रेंडशिप, हम फ्रेंड में, हाँ मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है और कुछ मदद मांगी तो कुछ नहीं, सो दैट इज नॉट अ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट सर्विस।
So Lord Ramchandra, he told, my dear friend, don't worry now. I will give you back your kingdom. I will give you back your wife, and your all riches and all your everything will be reestablished again. I will help you out. Don't worry. Nothing. Wali can never harm you now. You should not be afraid of Wali at all now. I am there to protect you. So Lord Ramchandra assured, and immediately he told Wali that I will serve you. है ना, मैं तुम्हारा problem solve करूंगा. And then Wali also assured that, Sugriv also assured that Lord Ramchandra, you don't worry. माता सीता कहीं पे भी हो, पाताल लोक में हो, हेवन में हो, धरती पे हो, किधर भी कोना कोना में छान मार के माता सीता को कैसे भी ढूंढ के निकालूंगा, है ना. तो the like that, then they, while doing friendship, they committed, they did service. Service was the basis of their friendship, है ना, commitment to help each other. So like that. So this meeting will end in 1 minute. So please rejoin again. Then we'll continue again. So please rejoin.